Yes, good afternoon, everyone. Till now, we have discussed about some basic terminology of graph. Okay, in which we have talked about first of all finite and infinite graphs. Then after we have classified them as simple graph, multi-graph, pseudo-graph. Okay, these three are in context to undirected graph. Okay, in the same way, for directed graph, we have defined it to be as simple directed graph, directed multigraph, and mixed graph. Okay, so these basic terms we have defined earlier till now. Okay, moving forward, now the next terminology we are going to use is we are saying that two vertices u and v in an undirected graph G is called to be as adjacent. Means we are going to define what is adjacent vertices in a graph. Okay. So for defining adjacency, we are saying that if U and V, which are the vertices, are the endpoints of an edge G, then it is called to be as adjacent. Means here we are saying that two vertices U and V will be adjacent whenever there is an edge having U and V as their endpoints. Okay, the same here we have written if E is associated with UV, UV means the unordered pair of vertices U and V, then the edge E is called incident with vertices U and V. Okay, so one more terminology we are going to use is incident. Incident means any edge E is called to be as incident with vertices U and V whenever the edge E is associated with the vertex pair UV. ठीक है, यानी कि वर्टेक्स U से वर्टेक्स B के बीच में, यानी कि U और V के बीच में अगर कोई एज E है तो इस एज E को हम बोलते हैं द एज E इज इंसिडेंट विथ वर्टिसेस U एंड V. इन द सेम वे अगर U और V के बीच में एजेज एक एज E है तो देन वी कैन से दैट U and V are adjacent vertices. Okay, so here we have defined two terms. One is called adjacent vertex and the other one is called incident relationship. Okay, so if we are talking in context to age, we are saying that the age is incident with vertex U and V whenever the age E is associated with the unordered pair of vertex UV. Okay, and the same is for adjacent. Okay, now one thing more we are saying that here the U and V vertices are called to be as the endpoints of the edge associated with UV. ठीक है, तो यहाँ पे हमने U और V जो लिया है that will be the vertex U और V जो है, अगर एक वर्टेक्स U है दूसरा वर्टेक्स B है V है और इन दोनों के बीच में कोई एज E है तो उस केस में दो चीजें मैंने डिफाइन करी कि क्योंकि U और V के बीच में वर्टेक्स सॉरी U और V वर्टेक्स के बीच में एज E है इसलिए U और V एडजेसेंट वर्टिसेस हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग. ओके, सेकेंड थिंग वी आर सेइंग दैट कि अगर U और V वर्टेक्स के बीच में एक एडजेसेंट एक एज E है तो देन वी कैन से द एज E इज इंसिडेंट विथ
vertex u and vertex v, and here the vertex u and v are called to be as the endpoints of this one. Okay, let me draw this. Just wait. Suppose, okay, this one, if it is visible to all of you, we have taken two vertices u and v represented by circles. Okay, there is one edge between these two vertices u and v that is called to be as edge e. We are defining two terms. One is called adjacent vertex. Here the vertex u and v are called to be as adjacent because there is an edge e between them. First thing. Second thing, we are saying that the edge e is incident with vertex u and vertex v because the edge e is associated with the vertex pair uv. This is the second definition. Third thing, we are saying that here u and v vertices are called to be as endpoints for edge e. Okay, so these three terms I have defined. One is called adjacent vertex, second one is incidence relation, and the third one is endpoints. Yes, any doubt in this you can ask. Yes, anyone? Okay, so this is called to be as adjacent. Okay, here we are talking about undirected graph, इसलिए जो हमने एज लिया वो undirected एज लिया. ठीक है, this can be also defined in context to directed graph. Okay, so here we are moving to the next one. Next term we are going to define is degree. Okay, we are first talking about for undirected graph. The term degree of any vertex in an undirected graph is defined to be as the total number of edges incident with the vertex. ठीक है, किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में एक वर्टेक्स का जो डिग्री होगा that is defined to be as the number of edges incident with that vertex. ठीक है, यानी कि उस वर्टेक्स से इंसिडेंट एजेस कितनी हैं that will define the degree of a particular vertex in the undirected graph. ठीक है, every simple edge has contribution of 1 to the degree of the particular vertex. ठीक है, सभी सिंपल एजेस का जो डिग्री में
कंट्रीब्यूशन है, उस वर्टेक्स की डिग्री में कंट्रीब्यूशन है, वो 1 का होता है एक्सेप्ट द लूप एज। अगर किसी वर्टेक्स पे लूप एज है तो उसका कंट्रीब्यूशन 2 होता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी वर्टेक्स पे कोई लूप है तो उस लूप के लिए आप उसकी डिग्री में 2 ऐड करोगे, लेकिन अगर वो नॉर्मल एज है तो उस केस में उसके लिए आप 1 ऐड करोगे उस वर्टेक्स की डिग्री। ठीक है, तो इसको हम डिग्री बोल रहे हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय DEG इन ब्रैकेट V। V इज द वर्टेक्स जिसकी हम डिग्री कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ V को DEG ऑफ V डिनोट करते हैं। दो टर्म और है इसमें। पहला ये कि किसी वर्टेक्स का डिग्री अगर 0 है, इफ देयर इज अ वर्टेक्स हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड टू बी एज आइसोलेटेड वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स का डिग्री 0 है, इसका मतलब देयर इज नो एज इंसिडेंट विथ अ वर्टेक्स इन द ग्राफ। if there is no edge incident with a particular vertex, then the vertex is called to be as isolated vertex। यानी अगर किसी एज के साथ, किसी वर्टेक्स के साथ कोई एज नहीं है तो उस वर्टेक्स को हम आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं, क्योंकि उस केस में उसका डिग्री 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री 1 है, ठीक है, यानी कि उस वर्टेक्स से केवल एक ही एज एसोसिएटेड है, तो उस केस में हम उस वर्टेक्स को पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं। तो दीज आर द टू टर्म्स वी आर यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट टू द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। Yes, degree of a vertex in the undirected graph is defined to be as the number of edges incident to that vertex। ठीक है, किसी वर्टेक्स से कितनी एजेस जुड़ी हुई हैं, दैट विल डिफाइन द डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जो एजेस ले रहे हैं वो नॉर्मल एजेस ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो लूप एज है तो उस केस में उसकी डिग्री को काउंट करने के टाइम उस एज का कंट्रीब्यूशन 2 होगा। यानी नॉर्मल एज के लिए आप डिग्री में 1 ऐड करोगे, जितनी एजेज होंगी उतनी डिग्री होगी, लेकिन अगर लूप है तो उस लूप को आप 2 काउंट करोगे, एक लूप के लिए आप डिग्री में 2 ऐड करोगे। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन पार्ट हो गया। दूसरा मैंने बताया आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स वो वर्टेक्स है जिसका डिग्री 0 हो, यानी कि जिससे कोई भी एजेस इंसिडेंट ना हो। ऐसा वर्टेक्स जिससे कोई भी एज कनेक्टेड ना हो, देन दैट वर्टेक्स इज कॉल्ड टू बी एज आइसोलेटेड वर्टेक्स। और अगर कोई ऐसा वर्टेक्स है जिससे केवल एक ही एज कनेक्टेड है, यानी कि एक ही एज इंसिडेंट है, तो उसको हम बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। यानी कि वो वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 है, that is called to be as pendant vertex, and the vertex for which the degree is 0 is called to be as isolated vertex। ठीक है, so this is about the definition part। Let us look at this example, this one। if you look at this graph, okay, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इसमें देखो आप वर्टिसेस क्या क्या हैं, तो A है, B है, C है, D है, E, F, G, H, I, J, ये सभी क्या है, वर्टिसेस हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो लाइंस हैं, दिस इज कॉल्ड टू बी एज एजेस। ओके, सो इफ यू काउंट द नंबर ऑफ एजेस, so what is the number of edges in this graph? Count it। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। Okay, there are 11 vertices, sorry 11 edges। Okay, इस ग्राफ में टोटल जो एजेज हैं वो कितनी है, 11, 11। ठीक है, वर्टिसेज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इन दिस ग्राफ वी हैव 10 vertices and 11 edges। ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। नाउ अगर हम डिग्री की बात करें तो वर्टेक्स ए की डिग्री कितनी है, वर्टेक्स ए की डिग्री कितनी है, 1। 1 इसलिए क्योंकि वर्टेक्स ए से
इंसिडेंट एजेस कितनी है? केवल एक, केवल यही एक एज है जो वर्टेक्स ए से इंसिडेंट हो रही है, यानी कि कनेक्टेड है। ठीक है, द दिस एज इज इंसिडेंट विथ वर्टेक्स ए बिकॉज इट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड डी। तो ए से भी इंसिडेंट है और डी से भी इंसिडेंट है। ठीक है, दिस एज इज कॉल्ड टू बी एज इंसिडेंट विथ वर्टेक्स ए बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू वर्टेक्स ए एंड डी। ओके, तो ये हो गया। ऐसे ही अगर हम बी की बात करें तो बी का डिग्री कितना है? 1। यहाँ बी का डिग्री कितना है? 1, क्योंकि बी से इंसिडेंट एजेस कितनी है? 1। सी की अगर हम बात करें तो सी से इंसिडेंट एजेस कितनी है? 1। नाउ लुक एट डी। अगर हम डी वर्टेक्स देखें, सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ वर्टेक्स डी हियर? सो इट इज 4। देखो, यहां से डी वर्टेक्स से 4 एजेस कनेक्टेड हैं, 1, 2 और ये 3 और ये 4। ओके, तो डी का डिग्री हो गया 4। ई का डिग्री कितना होगा? 1 2 3 4, 4 एजेस हैं। एफ का, तो एफ से केवल एक एज है। जी से 3 एजेस हैं। एच से 3 एजेस हैं। आई से 2 एजेस हैं। और जे से 2 एजेस हैं। ठीक है, सो बाय दिस वे वी हैव डिफाइंड द डिग्री of a vertex in the graph. Is it okay? Okay, so whenever we are saying degree means the number of edges incident with a particular vertex. ठीक है, तो जितनी एजेज हैं उतना काउंट कर लो, वो उसका डिग्री हो जाएगा, अगर नॉर्मल एजेज हैं तो। लेकिन अगर यही अगर लूप हो, फॉर एग्जांपल इसमें हम ये चेंज कर दें, लुक एट दिस। ठीक है, सपोज हम इस ई वर्टेक्स पे ये एज ऐड कर दें। सो नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ वर्टेक्स ई हियर? एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ वर्टेक्स ई? तो ई से 4 नॉर्मल एजेज हैं और एक लूप है, तो लूप का काउंट 2 होता है, एजेस का काउंट 1 होता है। ठीक है, तो 4 एजेस के लिए 4 हो गया और लूप के लिए +2, तो नाउ दिस 4 विल बी चेंज टू 6 हियर। ओके, अगर हम इसमें ये लूप ऐड कर दें तो अब जो ई का डिग्री होगा इट विल बी काउंटेड एज 6। ओके, क्योंकि जो लूप है उसका कंट्रीब्यूशन 2 होता है डिग्री में, और जो नॉर्मल एजेज है उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। ठीक है, तो बाय दिस वे वी हैव डिफाइंड द डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स। एनी क्वेरीज इन दिस यू कैन आस्क। हियर आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि जो एजेस लिए हमने वो सभी एजेस अनडायरेक्टेड एजेस हैं। ऐसे ही आप इस एग्जांपल को देख सकते हो। इस एग्जांपल में भी अगर हम बात करें तो इस वर्टेक्स की डिग्री 2 है, इस वर्टेक्स की डिग्री 2 है, इस वर्टेक्स की डिग्री 2 है, क्योंकि तीनों ही वर्टेक्स से 2 एजेस इंसिडेंट है। ठीक है, अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो ये एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है, क्योंकि इसकी डिग्री 0 है। यहाँ इस वर्टेक्स से कोई भी एज कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है। ठीक है, मान लो ये भी इसी ग्राफ का पार्ट हो और ये ऐसे जुड़ा हो, दिस वन। ओके, अब मान लो आपका ग्राफ ये है। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस वर्टेक्स हियर? तो नाउ दिस विल बी चेंज टू 1, और ये चेंज हो गया कितना? दैट इज 3। ओके, गॉट इट? So now this kind of vertex is called to be as pendant vertex.
वो वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 हो, दैट इज कॉल्ड टू बी एज पेंडेंट वर्टेक्स। जैसे इस वाले एग्जांपल में ए बी सी एफ, ये चार जो है पेंडेंट वर्टिसेज हैं। इस वाले एग्जांपल में अब ये जो है आपका पेंडेंट वर्टेक्स। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स, pendant vertex and isolated vertex. Any queries till now? You can ask. Okay. अब मैं इसको चेंज करता हूं. Okay. Now again we are talking about this graph. आप फिर से इस ग्राफ को देखो. ठीक है, इस ग्राफ में अगर हमने फाइंड आउट किया कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेज हैं, यहां मैं लिख लेता हूं. ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेज हैं वो कितनी थी? 10. 10 थी ना? इस ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है? 10. 10 या 11? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 ही है. ओके, नंबर ऑफ एजेस कितनी है? बताओ. 11. ओके, और ये जो हमने डिग्री कैलकुलेट किया, अगर हम सभी डिग्री का सम करें कितना आएगा जरा बताओ. कितना आया? 22. 22. Okay, so here we have got the sum of degree of vertices is equals to 22. Okay, the sum of degree of vertices is equals to 22. Now here I am writing this way, sum of, this is अगर हम D E और G लिखें, ब्रैकेट में V लिखें, and this quantity is equals to, just wait, where is, is equals to 2 into E. So here is it true? Sum of degree of vertices is equals to 2 times number of edges. आपने वेरीफाई भी किया इसमें. अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो डिग्री ऑफ वर्टिसेज आई 22, सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेज आई 22 और नंबर ऑफ एजेस है 11. तो 11 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 22. ठीक है, 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो उसका रीजन ये है कि कभी भी किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमेशा एक एज का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 होगा. क्यों? क्योंकि कभी भी जो एज होगा वो 2 वर्टिसेस के बीच में होगा. इज इट ट्रू? कोई भी एज, हम नॉर्मल एज की बात कर रहे हैं, लूप एज की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एज हमेशा 2 वर्टिसेस के बीच में होगा. ठीक है, जैसे अगर हम इस एज की बात करें तो ये 2 वर्टेक्स बी और डी के बीच में है. अगर हम इस एज की बात करें तो ये ए और डी के बीच में है. अगर हम इस एज की बात करें तो ये डी और ई के बीच में है. इस एज की बात करें तो ये ई और एफ के बीच में है, एंड सो ऑन. तो इसका मतलब ये हो गया कि
हर एक एज का, each age has a contribution of 2 in the degree calculation, क्योंकि जो एज है वो हमेशा दो वर्टिसेस से इंसिडेंट होगा, इसलिए एक बार एक वर्टेक्स में काउंट होगा और एक बार दूसरे वर्टेक्स में काउंट होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई हियर वी आर मल्टीप्लाइंग विथ 2, okay, and this is an important theorem of graph theory, and this theorem is known to be as just wait, मैं इसको लिख लेता हूं ऐसे, this thing is called to be as handshaking theorem, ओके। तो जो हमने अभी डिफाइन किया, ये इसको हम बोलते हैं yes, anyone having queries in this, you can ask. This is called to be as handshaking theorem, जो ये कह रहा है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस जो होगा दैट विल बी ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। आप इस प्रॉपर्टी को इस ग्राफ में भी वेरीफाई कर सकते हो। देखो, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, ठीक है, ओके। और अगर हम सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस करें तो कितना हो गया, 2 + 2 + 2 एंड दैट इज 6। नंबर ऑफ वर्टिसेस देखें, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, 3। एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, और सॉरी नंबर ऑफ एजेस देखें अगर हम, तो कितनी एजेस हैं, तो यहाँ पे देखो, ये एक एज हो गया, ये दूसरा एज हो गया, और ये आपका तीसरा एज हो गया। तो नंबर ऑफ एजेस 3 है और सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस कितना है, 6 है, बिकॉज 3 × 2 = 6, okay। So here we are talking about, ठीक है, here we are talking about the sum of degree of vertices is always equals to twice the number of edges in case of undirected graph. This is first result, ठीक है। अगर आप इस वर्टेक्स को भी, अगर आप इस वर्टेक्स को भी इसी ग्राफ का पार्ट मानो, ठीक है, अगर हम बोले कि नहीं यहाँ ये जो वर्टेक्स है ये इसी ग्राफ का पार्ट, तो भी नंबर ऑफ वर्टिसेस, सॉरी नंबर ऑफ एजेस कितनी है, अभी भी हमारे पास 3 है, ठीक है। अगर हम इस वर्टेक्स को भी इसी ग्राफ का पार्ट माने जो कि आइसोलेटेड वर्टेक्स है, तो उस केस में भी नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 3। तो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस कितना होगा, 2 + 2 + 2 + 0 एंड दैट इज 6, विच इज 2 × 3, ठीक है। लेट अस से हमने ये चेंज किया था कि हमने इसको कनेक्ट कर दिया, अब इसका डिग्री हो गया 3, इसका डिग्री हो गया 1। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ एजेस हियर नाउ, तो अब इस ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 4, ठीक है। और सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस कितना है, तो 2 + 2 + 3 + 1 दैट इज 8, and 8 is what, 2 × 4, okay। So by this way we have verified that in any undirected graph the number of, sorry, the sum of degree of vertices is always twice the number of edges, okay। one more property we can verify here, आप देखो पहले ग्राफ में वो वर्टेक्स जिसकी डिग्री ऑड नंबर है उसको हम ऑड डिग्री वर्टेक्स बोल रहे हैं,
और वो वर्टेक्स जिसकी डिग्री इवन है उसको हम इवन डिग्री वर्टेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ ऑड डिग्री वर्टिसेस कितनी है इस ग्राफ में? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी है? 6। इवन डिग्री वर्टिसेस कितनी है? 1, 2, 3 और 4। 4 ये भी क्या है? इवन है। तो ये एक और प्रॉपर्टी है अनडायरेक्टेड ग्राफ की कि कभी भी द नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस, ठीक है, और द नंबर ऑफ इवन डिग्री वर्टिसेस, बोथ, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, द नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस और द नंबर ऑफ इवन डिग्री वर्टिसेस in an undirected graph is always even. So this is the next property that we can determine from this. किसी भी ग्राफ में नंबर ऑफ इवन डिग्री वर्टिसेस जो हैं या नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस जो हैं वो हमेशा इवन होगा। ओके, यस, एनी क्वेरीज अप टू हियर यू कैन आस्क। नहीं नहीं, सम नहीं, मैं बात कर रहा हूं केवल नंबर की। The number of vertices having odd degree or the number of vertices having even degree is always even। ठीक है, मैं सम की बात नहीं कर रहा हूं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस जिसकी डिग्री इवन हो वो भी इवन होगा, और नंबर ऑफ वर्टिसेस जिसकी डिग्री ऑड हो वो भी इवन होगा किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, सॉरी किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। यस, एनी क्वेरीज? साक्षी, यू आर सेइंग उनका सम या इंडिविजुअल? मैंने बताया था अभी आपको, यहाँ पे मैं सम की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द काउंटिंग ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, कि कितने वर्टिसेज हमें लेने हैं जिनका डिग्री ऑड होगा, कितने वर्टिसेज हमें लेनी है जिनका डिग्री इवन होगा। तो वो प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी ग्राफ में, अनडायरेक्टेड ग्राफ में, जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री इवन हो वो भी इवन होगा, और जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड हो वो भी इवन होगा। एग्जाम्पल ये दोनों ही हैं, आप दोनों ग्राफ देख सकते हो। अगर हम पहले ग्राफ की बात करें तो कितनी वर्टिसेज हैं जिनका डिग्री इवन है? तो 1, ठीक है, 2, 3 और 4। ये 4 वर्टिसेज ऐसी हैं जिनका डिग्री इवन है, क्योंकि वो 4 वर्टिसेज कौन कौन सी हैं? डी, ई, आई, जे। ये 4 वर्टिसेज ऐसी हैं जिनका डिग्री इवन है। ओके, तो कितने नंबर हो गए? 4। द नंबर ऑफ इवन डिग्री वर्टिसेज इज 4, which is even number. Second thing I am saying, the number of odd degree vertices. तो A odd degree vertex है, B odd degree vertex है, C odd degree vertex है, और F odd degree vertex है, G odd degree vertex है, H odd degree vertex। तो टोटल नंबर ऑफ vertices कितने हो गए? 6। There are 6 vertices which are having odd degree, which is also even number। ठीक है, 6 क्या है? इवन नंबर है। 4 क्या है? इवन नंबर है। ऐसे ही आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हो। ठीक है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 1 है। तो 2 वर्टिसेज हैं इवन डिग्री की, 2 वर्टिसेज हैं ऑड डिग्री की। ओके, so that's why we have verified this property also। Yes, you can consider loop also।
लेकिन लूप के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि उसकी काउंटिंग हमेशा 2 होगी, 1 नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आप लूप को भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लूप की काउंटिंग हमेशा 2 होगी, एक नहीं होगा, क्योंकि जो जो लूप स्टार्ट हुआ और जहां पे एंड हुआ वो दोनों वर्टिसेस आइडेंटिकल है। जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हो रहा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी एज लूप। इसलिए हम उसका काउंटिंग 2 लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगे तब भी उस केस में जो है वो प्रॉपर्टी ट्रू होगी। ठीक है, सो अब हियर नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। Here we have taken one problem having multiple. Okay, having multiple edges and parallel edges also. So tell me the degree of vertices. Okay, tell me ए का डिग्री कितना है पहले ग्राफ में? 2। बी का डिग्री कितना है? 4। सी का डिग्री 4। डी का 1। ई का, यस टेल मी, ई का डिग्री 3। चलो एफ का बताओ। 4। ओके, जी का 0। तो कितने वर्टिसेज हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 वर्टिसेज हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेज की। सम कितना आया बताओ? सम ऑफ डिग्री कितना हुआ? 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 1 11 + 3 14 + 4 18 + 0 18। Now it is 18, Sahil, not 17, it is 18. Okay, okay, now count the number of edges here. Count with me. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yes, Sahil, you are saying. Priya, you are saying, sir, G is not connected with any vertex. Yes, obviously. यहाँ पे G जो है वो पेंडेंट वर्टेक्स, सॉरी आइसोलेटेड वर्टेक्स है, क्योंकि इसकी डिग्री 0 है। ठीक है, मैंने आपको बताया ग्राफ में कंपलसरी नहीं है कि वर्टिसेस कनेक्टेड हों एजेस से। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 9। इसलिए सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस कितना आया? 18, which is equals to 2 time number of edges. Here the sum of degree of vertices is 2 time the number of edges. Okay, okay, जरा अब इवन डिग्री वाले वर्टिसेस बताओ मुझे कितनी है? तो ए है, बी है, सी है, एफ है और जी है। 0 is found to be as even number. 0 is considered to be as even number. Just remember, 0 is considered to be as even number, not odd number. ठीक है, तो कितनी वर्टिसेस इवन डिग्री की हैं? 5।
और कितनी वर्टिसेस ऑड डिग्री की हैं? 2। एक प्रॉपर्टी इसमें मैंने आपको बताया अभी कि नंबर ऑफ इवन डिग्री वर्टिसेस, ये इवन की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक करेक्शन कर लेना आप, यहाँ पे हम केवल ऑड डिग्री वर्टिसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस जो होंगी वो हमेशा इवन होंगी, ठीक है। इवन इसलिए क्योंकि जो हैंड सेकिंग थ्योरम है वो ये कहता है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज 2 टाइम नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। और जब भी हम 2 टाइम कर रहे हैं इसका मतलब सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस हमेशा क्या होगा? इवन नंबर होगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू एंश्योर दैट द नंबर ऑफ, ये उसी से कंक्लूड होता है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू एंश्योर दैट द नंबर ऑफ इवन डिग्री वर्टिसेस, सॉरी, द नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस मस्ट बी इवन। ये प्रॉपर्टी है, इवन के लिए प्रॉपर्टी नहीं है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली ऑड डिग्री वर्टिसेस, वो हमेशा इवन होंगे, ये कंपल्सरी है, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिया ये। अब आप, ये प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम दूसरे ग्राफ को देखें तो जरा बताओ मुझे क्या क्या चेंजेस होंगे। टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए सेकेंड ग्राफ में? चलो 4 हो गया। बी का, बी का डिग्री इट इज 6। वंशिका यू आर करेक्ट, इट इज 6। 4 जो है नॉर्मल एजेज हो गए और एक लूप है तो 6 हो गया। सी का, तो सी के लिए 1 हो गया। डी का, डी का है 1 2 3 4 5, 5। डी का हो गया 5। और ई का 3 3 6, 6। ओके, तो ये हो गया हमारा 5 ही है, 5 ही है। हियर वी हैव 5 वर्टिसेस जिनकी डिग्री ये आ गई। अगर हम सम ऑफ वर्टिसेस, सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस करें तो कितना आ गया? 10 11 16 और 22, 22 ओके। और नंबर ऑफ एजेस कितनी है जरा बताओ मुझे। तो जरा काउंट कर लेते हैं इसको, यहाँ पे हम इसको काउंट कर लेते हैं। ड्रॉ, ओके। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और यहाँ पे 3 है तो 8 9 और ये 10, ठीक है। और एक लूप एज। देखो, मैंने जो आपको 2 बताया था, 2 का काउंट किस में होता है? जब हम किसी वर्टेक्स की डिग्री कंप्यूट कर रहे होते हैं तो उस वर्टेक्स की डिग्री में लूप का काउंट 2 होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो एजेस कितनी है? तो एजेस कितनी हो गई? तो वहां पे हम एज काउंट 1 ही लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो यहाँ पे 10 यानी कि 10 नॉर्मल एजेस हैं और 1 लूप एज है। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई? 11, 11, ठीक है। और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 22। साहिल, नंबर ऑफ एजेस 12 नहीं होंगी, नंबर ऑफ एजेस 11 होगी, क्योंकि हमारे पास 10 नॉर्मल एजेस हैं और 1 लूप है, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस काउंट में लूप का काउंट 1 ही होता है, लेकिन हम किसी वर्टेक्स की डिग्री काउंट कर रहे होते हैं तो उस केस में उस लूप का कंट्रीब्यूशन डिग्री में 2 होता है। डिग्री में 2 इसलिए होता है क्योंकि उसी से स्टार्ट हुआ उसी पे एंड हो गया, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग वाला मानते हैं और एक एंड वाला मानते हैं। दैट्स वाई लूप का कंट्रीब्यूशन डिग्री में एक वर्टेक्स के लिए 2 होता है, लेकिन नंबर ऑफ एजेस की अगर हम बात करें तो हम उसको 1 ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ में हमारे पास टोटल 11 एजेस हैं, इसलिए सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस आया 22, ठीक है।
अगर हम इवन डिग्री वर्टिसेस की बात कर लें तो यहाँ पे देखो आप अगेन, यहाँ इस वाले एग्जांपल में इवन डिग्री वर्टिसेस कितनी है, तो 4 6 6, ये 3 इवन डिग्री वर्टिसेस हो गए, और ऑड डिग्री वर्टिसेस कितनी है 2 1 और 5। तो हमारा कंसर्न था ऑड डिग्री से, तो ऑड डिग्री वर्टिसेस हमेशा इवन होती है, ये वेरीफाई होगी। ओके, तो दिस इज अबाउट डिग्री एंड हैंड-शेकिंग थ्योरम। टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट दिस वन। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन। हियर आई एम, नेक्स्ट पेज। जो मैंने अभी बताया आपको हैंड-शेकिंग थ्योरम, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट जी इक्वल्स टू वी ई। जी एक ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, जहाँ पे v जो है सेट ऑफ वर्टिसेस को डिनोट कर रहा है और e जो है सेट ऑफ एजेस को डिनोट कर रहा है। तो उस केस में अगर इस g ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस e के बराबर हैं, तो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस क्या होगा, 2 टाइम नंबर ऑफ एजेस यानी कि e। ठीक है, v बिलोंग्स टू कैपिटल V इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी वर्टेक्स ऑफ द सेट v। ठीक, तो सभी वर्टिसेस का डिग्री का अगर हम सम करें तो दैट क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम नंबर ऑफ एजेस, एंड दिस इज कॉल्ड टू बी एज हैंड-शेकिंग थ्योरम। ठीक है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने एग्जांपल लिया है, हाउ मेनी एजेस आर देयर इन ए ग्राफ विथ 10 वर्टिसेस ईच ऑफ डिग्री 6। ठीक है, तो एक ग्राफ है जिसमें कि 10 वर्टिसेस 10 वर्टिसेस हैं और हर एक वर्टेक्स की डिग्री 6 है, तो कितनी एजेस होंगी ग्राफ में। तो आप इस थ्योरम को यूज करके, हैंड-शेकिंग थ्योरम को यूज करके डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो कि उस ग्राफ में कितनी एजेस होंगी। ओके, गॉट इट। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है 10, और हर एक वर्टेक्स का डिग्री कितना है 6। तो 10, अगर हम सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस करें तो 10 को हमें 6 टाइम प्लस करना पड़ेगा, तो इट विल बी इक्वल्स टू 60। अगर हम सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस फाइंड आउट करें तो 10 को हमें 6 टाइम ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक वर्टेक्स का जो डिग्री है वो 10 है। ठीक है, तो सभी वर्टिसेस के डिग्री का सम करें तो वो 60 हो जाएगा, एंड दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम नंबर ऑफ एजेस यानी कि 2e। तो e की वैल्यू आ गई 30, यानी कि नंबर ऑफ एजेस उस ग्राफ में कितनी होंगी 30। तो अगर आपको एक ग्राफ लेना है जिसमें 10 वर्टिसेस हो और सभी का डिग्री 6 हो, तो उसमें नंबर ऑफ एजेस हमेशा 30 के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ दिस हैंड-शेकिंग थ्योरम। ओके, any doubt in this you can ask. Okay, before going further, here I am sharing one more problem statement. Just wait. Okay, look at this one. What we have done till now. So here we are saying first thing, the sum of degree of all the vertices is always even, क्योंकि वो 2 टाइम नंबर ऑफ एजेस होता है। Okay, first thing we have concluded here is yes तुषार, you are correct कि हमें नंबर ऑफ एजेस पता चल जाएंगी, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि लूप एजेस है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो
whenever we are saying that it is simple graph, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वहां पे due to definition of simple graph it is clear that there is no loop edge, there is no parallel edge. ठीक है, तो वो उससे फाइंड आउट होता है कि जब भी हम सिंपल ग्राफ की बात करेंगे तो वहां पे लूप एज तो आएगा ही नहीं, पैरेलल एजेस आएंगे ही नहीं, यानी कि जो भी एजेस होंगी वो नॉर्मल एजेस होंगी अगर ये मेंशन्ड है कि वो सिंपल ग्राफ है तब। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कि उसमें लूप एजेस हैं या नहीं या पैरेलल एजेस हैं। ठीक है, क्योंकि हम केवल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, केवल इतनी इंफॉर्मेशन से। तो हमने कुछ चीजें कंक्लूड करी यहाँ पे कि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज ऑलवेज इवन। दूसरा ये द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस विथ ऑड डिग्री इज ऑलवेज इवन, ये भी हमने फाइंड आउट किया क्योंकि नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इवन होगा, तो नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इवन होगा, तो अगर हम उस ऑड डिग्री वर्टिसेस का डिग्री का हम सम करें तो वो क्वांटिटी भी इवन नंबर होगी क्योंकि इवन नंबर को प्लस करने से इवन नंबर ही मिलता है। ठीक है, और तीसरा ये है द नंबर ऑफ वर्टिसेस विथ ऑड डिग्री आर ऑलवेज इवन, जो मैंने अभी बताया आपको। तो ये दोनों डिपेंडेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, दिस वन, एनी डाउट इन दिस थ्री कंक्लूजन्स यू कैन आस्क। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट किया कि सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस हमेशा इवन नंबर होगा, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस जो है वो भी इवन होगा, और नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस जो है वो भी इवन होगा। ये तीन कंक्लूजन हमने डिसाइड किया। अब लेट अस शेयर here I am sharing one problem. Suppose in this problem statement we have given a simple graph. Now देखो यहाँ पे मेंशन है कि सिंपल ग्राफ, तो सिंपल ग्राफ है यानी कि नो पैरेलल एजेस एंड नो लूप्स। ठीक है, has 24 edges and the degree of each vertex is 4. Find the number of edges, number of vertices. So how to compute this? So you can utilize हैंडशेकिंग थ्योरम। यहाँ पे आपको e की वैल्यू दे रखी है, e की वैल्यू है 24 और डिग्री जो है हर एक वर्टेक्स का 4 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर हम n मान लें तो 4 को हमें n टाइम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 24, 2 into 24, 2 टाइम नंबर ऑफ एजेस, तो 4n इक्वल्स टू 48, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 12। 4 into n is equals to 2 into 24, यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, दैट इज 12। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 12। ऐसे ही ये सेकेंड प्रॉब्लम है। लुक एट दिस, ए ग्राफ कंटेन्स 21 एजेस, 3 vertices of degree 4 and all other vertices of degree 2. Find the total number of vertices. Yes, tell me what is the answer for this. Just reply fast. Nitya, what the answer for this? Sahil, you are saying 18. Vansika, 18. Priya, 13. Yes, anyone else? कितना होना चाहिए आंसर इसका? जानवी, you are saying 18. So yes, 19. Okay. तो हमें नंबर ऑफ वर्टिसेस नहीं पता है तो हम उसको n मान लेते हैं। ठीक है, 3 वर्टिसेस हैं 4 डिग्री की, तो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस कैसे निकलेगा? तो 3 into 4, तो 3 जो है 4 डिग्री की है, तो रिमेनिंग कितनी बची n-3। ठीक है, अगर आपके पास टोटल n वर्टिसेस हैं तो रिमेनिंग अब कितनी रह गई n-3। ठीक है, तो द इक्वेशन विल बिकम व्हाट, यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ से
लिख लेते हैं इसको, सपोज दिस वन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस की बात कर रहा हूँ, तो 3 × 4 प्लस 3 वर्टिसेस 4 डिग्री की हो गई, तो रिमेनिंग आपकी हो गई n-3, अगर हम n टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस ले रहे हैं तो। और ये कितने डिग्री की हैं? 2 की, इंटू 2, ये पूरा हो गया सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस, एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 2 टाइम नंबर ऑफ एजेस, यानी 2 टाइम 21. So what the answer here? Now you can find out the value of n. कितना हो गया? 42 में 12 गया 30, 30 को 2 से डिवाइड किया 15, और 15 को प्लस 3 किया 18. The answer will be, from here answer will be 18. So therefore there are 18 vertices. Okay, so by this way you can utilize this handshaking theorem. This is all about today's class. We will continue in the next class. If you are having any queries, you can send me in the WhatsApp group. Thank you very much.